السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 60، قسط نمبر 60، ایک اشکال اور اس کا حل۔ ابن اسحاق کے اسکول میں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اہل نجران سے جزیہ اور صدقات لانے کے لیے بھیجا، تناقض ہے کیونکہ صدقہ اور جزیہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور اس سے زیادہ اشکال اس بات میں ہے جو انہوں نے اور دوسرے اہل مغازی نے لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ 10 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو نجران کے قبیلہ بنو حارث بن کعب کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ لڑائی سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دیں، اور یہ واقعہ وافد بنو حارث بن کعب کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ اہل نجران کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور 2000 حلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اہل نجران 2 قسم کے تھے، عیسائی اور امی، ناخواندہ لوگ۔ عیسائیوں سے آپ نے 2000 حلے پر صلح کی، اور امیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ جنگ میں اپنے دشمنوں پر کس طرح غلبہ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دونوں فریق کی طرف بھیجا کہ عیسائیوں سے جزیہ اور مسلمانوں سے صدقہ لے آئیں۔ دوست کا وفد آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملا۔ عامر فردہ بن عمرو جزامی کا وفد آیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں فردہ بن عمر جزامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا پیغام بھیجا اور ایک سفید خچر تحفہ میں دی۔ یہ روم کی سرحد سے ملحقہ عرب علاقہ کا کیسر کی طرف سے حاکم تھا اور مان شہر میں رہتا تھا۔ جب رومیوں کو اس کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس کو اپنے پاس بلا کر قید کر لیا اور بعد میں تختہ دار پر کھینچ کر قتل کر دیا۔ زہری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا، مسلمان سرداروں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اپنے رب کا مطیع ہوں اور میری ہڈیاں اور میرا جسم اس کے تابع ہے۔ بنو سعد بن بکر کا وافد زمام بن ثعلبہ حاضر ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور اپنا اونٹ مسجد میں بٹھا کر اس کا زانو باندھا، پھر نزدیک آ کر بولا، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ گورے رنگ کے تکیہ لگا کر لیٹنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا، اے پسر عبد المطلب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھتا ہوں اور اس کا حلفیہ جواب لینا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے گا کہ رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ہم سال میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالداروں سے زکوٰۃ لیں اور اپنے فقیروں میں تقسیم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، جو دین آپ لائے ہیں میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں قبیلہ بنو سعد بن بکر کا فرد ہوں۔ ابن اسحاق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو سعد بن بکر نے زمام بن ثعلبہ کو وافد کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور جس طرح ذکر ہوا ہے اس طرح بیان کیا، اور یہ الفاظ اس سے زیادہ بیان کیے۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد آنے والے لوگوں کے خدا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور اپنے ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کے بارے میں ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے اسلام کے تمام فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور باقی فرائض ایک ایک کر کے پوچھے، اور جس طرح پہلے سوال کے متعلق قسم دی تھی اس طرح ہر فرد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتا تھا۔ جب اس کے سوالات ختم ہوئے تو بولا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تمام فرائض اپنی قوم کو پہنچاؤں گا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اجتناب کروں گا، زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس 2 مینڈوں والے نے سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زمام رضی اللہ عنہ جسم کے مضبوط رنگ کے سرخ اور 2 مینڈیوں والے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ کا زانو کھولا اور اس پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے منہ سے پہلی بات یہ نکالی کہ لات اور عزا بری چیزیں ہیں۔ لوگ سن کر بولے، زمام زبان بند کرو، برس جنون یا جزام سے بچو،
बोले तुम पर अफसोस है, ये जरूर पहुंचा सकते हैं और नफा दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजा है, इस पर किताब नाज़िल फरमाई है और तुमको इस गुमराही से निकाल लिया है जिसमें तुम फंसे हुए थे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे पास वो चीजें लाया हूँ जिनका हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बखुदा शाम तक इनके गाँव में कोई मर्द या कोई औरत ऐसी नहीं रही जिसने इस्लाम कबूल ना किया हो। इब्न इसाक रहमतुल्लाह कहते हैं, हमने किसी कौम का वफद ज़म्माम से अफजल नहीं सुना। इस वाक़या में हज के जिक्र से मालूम होता है कि ज़म्माम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज फर्ज होने के बाद आए, मगर ये सही नहीं है। जाहिर ये है कि ये लफ्ज़ किसी रावी से इस वाक़या में दर्ज हो गया। वल्लाहु आलम। तारिक बिन अब्दुल्ला और उनकी कौम का वफद आया। इब्न इसाक रहमतुल्लाह की रिवायत है कि तारिक कहते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हम मस्जिद नबी में दाखिल हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े खिताब फरमा रहे थे, सदका किया करो, सदका करना तुम्हारे लिए बेहतर है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अपनी माँ बाप, अपनी बहन, अपने भाई और अली तरतीब करीबी रिश्तेदारों को बनु जरबू या अंसार का एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिलियत के ज़माना में इन लोगों के ज़िम्मा हमारे खून हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कोई माँ इस बिना पर कसूर न करे, इसकी सजा इसका लड़का भुगतेगा। ये 3 दफा फरमाया। 9 हिजरी में बनु तुजीब का 13 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद आया। ये कबीला बनु सकून का एक ज़ेली कबीला है। ये अपने साथ अपने मालों की ज़कात लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़कात वापस ले जाओ और अपने गुरबा में तकसीम कर दो। वो बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने फुकरा से बची हुई ज़कात लाए हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम बनु तजीब के वफद ने किया है वो आज तक अरब के किसी वफद ने नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसके साथ भलाई का इरादा करता है इसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्तावेज लिख कर देने का मुतालबा किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कर दिया। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान और हदीस के मसाइल सीखे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इनकी कदर व मंज़िलत बढ़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनकी बेहतर तरीक पर ज़ियाफ़त करने का हुक्म दिया। जब वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु से फरमाया, दूसरे वफ्तों की निस्बत इनको आला और कीमती तहफ़ दो। जब इनको तहफ़ दे चुके तो पूछा, तुम्हारा कोई और आदमी भी बाकी है? कहने लगे, हमारा एक लड़का बाकी है जिसको हम अपने डेरे पर छोड़ आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको हमारे पास भेज दो। वो लड़का आया तो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़रूरत मेरे इन साथियों जैसी नहीं है। बखुदा मैं तो अपने मुल्क से सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सवाल करें कि वो मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे हाल पर रहम फरमाए और मेरी ग़ना मेरे दिल में डाल दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में दुआ फरमाई, अल्लाह इसके गुनाह बख्श दे, इस पर रहम फरमा और इसकी तो नगरी इसके दिल में डाल दे। फिर हुक्म दिया, जिस कदर तोहफा इसके हर साथी को मिला है इसको भी दिया जाए। फिर ये सब लोग अपने वतन वापस चले गए। 10 हिजरी मिना के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कहने लगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के मोतरिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जो लड़का तुम्हारे साथ मेरे पास आया था वो कैसा है? बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस जैसा कोई आदमी नहीं देखा है और ना अल्लाह ताला ने इसे जो कुछ दिया है इस पर इससे ज्यादा काने ही सुना है। खुदा की कसम, अगर लोग इसके बाद दुनिया का माल तकसीम करें तो इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। आप सब ने फरमाया, खुदा का शुक्र है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे का पूरा मरेगा। एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स पूरा नहीं मरता। आप सब ने फरमाया, आदमी के दिमाग पर दुनिया की मुख्तलिफ मोहम और अफकार सवार हो जाते हैं, ना मालूम वो दुनिया की किस फिक्र में मरे। अल्लाह ताला भी ऐसे आदमी की परवाह नहीं करता। वो सब कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने बड़ी अच्छी हालत में जिंदगी बसर की है, दुनिया की इसको कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ताला ने इसको जो कुछ दिया है इस पर काने है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत से अहले ईमान इस्लाम से मुनहरिफ हो गए तो इसने बड़ी हिम्मत से काम लिया, लोगों को अल्लाह ताला की याद दिलाई और इस्लाम की खूबियां इनके ज़हन नशीन की। इसका नतीजा ये हुआ कि इसकी कौम में से एक फर्द भी इस्लाम से मुर्तद नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के इसकी इन मसाई से इत्तला मिली तो उनके दिल में इसकी कदर व मंज़िलत बढ़ गई। आप रज़ी अल्लाह ताला हमेशा इसके हालात पूछते रहते थे और अपने गवर्नर ज़ियाद बिन असद को इसके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म दिया। 9 हिजरी में बनु साद हज़ीम बिन कज़ा का वफद आया। ये लोग भी यमन के रहने वाले थे। 9 हिजरी में बनु फज़ारा का वफद आया। अबू रबी बिन सालिम अपनी किताब अल-इक्तफा में लिखते हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आए
तो बनु फजारा का 10 से कुछ ज्यादा आदमियों पर मुश्तमिल एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। खारजा बिन हसन और एमिया बिन हसन का भतीजा हर बिन कैस जो इन सब से छोटा था इसमें शरीक था। ये लोग बिनते हारिस के घर में फरोकश हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर उन्होंने इस्लाम का इकरार किया। बहुत कहत ज़दा थे और इंतहाई कमजोर और लागर ऊँटों पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इनके मुल्क का हाल पूछा तो एक आदमी कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मुल्क कहत की जद में है, हमारे जानवर मर गए हैं, हमारे बागात सूख गए हैं और हमारे अहल व अयाल भूखों मर रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम पर बारान रहमत नाज़िल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास हमारी सिफारिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब और आपका रब आपके पास सिफारिश करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, तुम पर अफसोस है, मैंने अपने रब के पास सिफारिश कर दी है, मगर ऐसी कौन सी हस्ती है जिसके पास हमारा रब सिफारिश करे, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो बड़ी अजमत वाला है, उसकी कुर्सी ने तमाम आसमान और जमीनों को घेर रखा है, वो इसकी अजमत और जलाल से इस तरह चरचर करती है जैसे एक नई जीन सवार के बोझ से चरचर करती है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी में जल्द मदद करने और तुम पर शफकत करने पर हंसता है। एक देहाती कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब हंसता भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो बोला, फिर हम अपने हंसने वाले रब की खैर से महरूम नहीं रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदवी की बात सुनकर हंस पड़े, फिर मिंबर पर चढ़कर चंद कलमात कहे जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिफ्साह में हाथ उठाए थे, दूसरे किसी दुआ में इतने ऊंचे हाथ नहीं उठाते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ऊंचे हाथ उठाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी नजर आने लगी। फिर ये दुआ की, इलाही अपने बंदों और अपने चौपायों पर बारिश बरसा, अपनी रहमत को फैला दे और बेआबाद मुल्क को आबाद कर दे। इलाही हम पर मदद करने वाली, राहत पहुंचाने वाली और फसल उगाने वाली बारिश नादिल फरमा, जो सारे इलाके को ढांप ले, जल्दी आए देर से न आए, नफा दे और नुकसान न पहुंचाए। इलाही रहमत की बारिश हो, अजाब की बारिश न हो जिससे मकान गिर जाएं, जानो माल डूब जाएं और मौजूदात मिट जाएं। इलाही हम पर बारिश नादिल करो, इस दुश्मन पर हमारी मदद फरमा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बनु असद का वफद आया जो 10 अफराद पर मुश्तमिल था। वाबसा बिन मुअब्बद और तलीहा बिन खवीलद भी इसमें शरीक थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। इनका खतीब कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारी तरफ कोई मुबल्लिग नहीं भेजा, हम खुद ही हल्का बगोश इस्लाम हो गए हैं। हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ताला वाहदहु ला शरीक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप इसके बंदे और रसूल हैं और हम अपने पीछे रहने वाले लोगों के नुमाइंदे हैं। मोहम्मद बिन काब करजी कहते हैं, अल्लाह ताला ने इनके बारे में ये आयत उतारी, यमन्नूना अलैका नस्लमु कुल ला तमन्नु अला इस्लामिकुम, ये इस्लाम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जताते हैं, इनसे कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न धरो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहानत और परिंदे उड़ाकर या कंकरियां फेंक कर नेक या बद मालूम करने के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इन चीज़ों से मना फरमाया। कहने लगे, एक चीज़ बाकी रह गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है? बोले, किस्मत आजमाने के लिए लकीरें खींचना कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का एक नबी ये इल्म जानता था, जो इससे नबी के इल्म के मुताबिक लकीर खींच दे वो दुरुस्त है। 9 हिजरी में यमन से बहरा का वफद आया, ये 13 आदमी थे। ये चंद दिन मिकदाद बिन उमरू के हाथ ठहरे, फराइज दीन सीखे, वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ताइफ देने का हुक्म दिया। 9 हिजरी में कबीला अजरा का वफद आया, ये 12 आदमी थे, इनमें एक हमजा बिन नोमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस कौम से ताल्लुक रखते हो? एक आदमी ने जवाब दिया, हम इस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नावाकिफ नहीं हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद कुसै की माँ की तरफ से भाई बनु अजरा के लोग हैं। हमने ही कुसै की इमदाद की थी और इसके मुखालफों खजा और बनु बकर को मक्का शहर से बाहर निकाला था। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरे रवाबित और करीब की रिश्तेदारियां हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा बिकुम वाहलन, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खूब जानता हूँ, मैं आप लोगों को खूब जानता हूँ। ये लोग हल्का बगोश इस्लाम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुल्क के शाम की फतह होने और हरकल के अपने वतन की तरफ भाग जाने की खुशखबरी सुनाई। नेज इनको काहिनों से बातें पूछने और बुतों के नाम पर ज़बा किए हुए जानवरों के खाने से मना फरमाया। नेज इनको बताया कि कुर्बानी के जानवर ज़बा करके खाया करो। चंद रोज के बाद ये लोग अपने घरों को वापस चले गए और तहाइफ से इनकी इज्जत की गई। माह रबीउल अव्वल 9 हिजरी में कबीला बिली का वफद आया, जो लोग रफ़ी बिन साबित बलवी के यहाँ उतरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा का शुक्र है कि इसने तुम्हें इस्लाम की तरफ हिदायत की। जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन पर मरेगा वो जहन्नमी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तहफ़ देकर इनको रुखसत किया। अमीर वफद अबू खबीब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ियाफ़त का बहुत शौक है,
क्या मुझे اس میں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غنی یا فقیر سے جو نیک سلوک کرو گے اس میں تجھے صدقہ کا ثواب ملے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت کتنے دن ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن۔ 3 دن کے بعد مہمان کو کھلاؤ گے تو یہ صدقہ ہے۔ مہمان کو تمہارے ہاں اتنی دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، تم اس سے تکلیف محسوس کرنے لگو۔ قبیلہ ذی مرہ کا 13 آدمیوں پر مشتمل وفد آیا، ان کا امیر حارث بن عوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے وطن کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان پر باران رحمت نازل فرمائے۔ یہ چند دن کے بعد طائف لے کر واپس ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے علاقے میں اسی دن بارش ہوئی تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بارش کی دعا کی تھی۔ شعبان 10 ہجری میں خولان کا وفد آیا، یہ 10 آدمی تھے اور سبھی مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس بت کی خولان کے لوگ عبادت کرتے تھے اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دے دیا ہے جسے آپ لائے ہیں، لیکن ایک بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ابھی تک اس سے چپٹے ہوئے ہیں، واپس جا کر ہم اسے انشاءاللہ توڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کے فرائض کی تعلیم دی، وعدہ پورا کرنے، امانت والے کو اس کی امانت واپس دینے اور ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور کسی پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ پھر ان کو تحائف دیے، یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے اور وعدہ کے مطابق اپنا بت توڑ دیا۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں محارب کا وفد آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اپنے آپ کو مختلف قبائل پر پیش کرتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اس وقت انہوں نے سب عربوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان میں سے 10 آدمی آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ 8 ہجری میں بنو صدا کا وفد آیا جو 15 افراد پر مشتمل تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے۔ ان کی مسائی سے ساری قوم مسلمان ہو گئی اور واقعی کے قول کے مطابق حجۃ الوداع میں ان کے 100 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رمضان المبارک 10 ہجری میں غسان کا وفد آیا، 3 آدمی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعامات دیے جاتے وقت کہنے لگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری قوم ہماری بات مانے گی یا نہیں۔ وہ اپنی قوم کو قائم رکھنے اور کیسر کے دامن میں پناہ لینے کو پسند کرتی ہے، چنانچہ واقعی ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے بھی اسلام کو چھپایا، حتیٰ کہ 2 آدمی اسلام پر فوت ہو گئے اور تیسرے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا۔ جنگ یرموک کے سال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ شعبان 10 ہجری میں سلمان کا وفد آیا، یہ 16 آدمی حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ملک کی خوش سالی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا کی۔ جب یہ تحائف لے کر واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس دن اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا کی تھی اسی وقت ان کے ملک میں بارش برسی تھی۔ ابس کا وفد آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری علماء نے ہمیں آ کر بتایا ہے جو شخص مسلمان ہو کر ہجرت نہ کرے اس کے اسلام کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر واقعی ہجرت نہ کرنے والے کا اسلام معتبر نہیں تو ہم اپنے مال مویشی اور جائیدادیں بیچ کر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے عمل ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا خالد بن سنان کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی صرف ایک لڑکی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خالد بن سنان کے واقعات بیان کی اور فرمایا وہ نبی تھے، ان کو ان کی قوم نے ضائع کر دیا۔ بنو عامر کا وفد آیا، یہ 10 آدمی تھے، انہوں نے اسلام کا اقرار کیا۔ آپ نے ان کو ایک تحریر دی جس میں اسلام کے احکام درج تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید پڑھایا۔ پھر یہ طائف لے کر اپنے وطن کی طرف واپس چلے گئے۔ 10 ہجری میں بنو ازدہ کا وفد حاضر ہوا۔ ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں اور حافظ ابو موسیٰ مدینی نے سوید رضی اللہ تعالیٰ بن حارث سے روایت کی ہے کہ میں اپنی قوم کے وفد میں 7واں آدمی تھا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گفتگو سنی، ہمارے اخلاق کا جائزہ لیا اور ہمارے لباس و پوشاک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر قوم کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہاری بات اور تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کی ہمارے ایمان کی حقیقت 15 چیزوں پر مبنی ہے، ان میں سے 5 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغوں نے بتائی ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے، 5 آپ نے بتائی ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، 5 ہم نے جاہلیت میں اپنائی ہیں اور اب تک ان پر قائم ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی چیز کو ناپسند کریں گے تو ہم اس کو ترک کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ 5 کیا ہیں جن پر ایمان لانے کی میرے مبلغوں نے تاکید کی ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
वो 5 क्या हैं जिन पर मैंने तुम्हें अमल करने के लिए कहा है? बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह ताला की वादानियत का इकरार करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें, और अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो बैतुल्लाह का हज करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो 5 क्या हैं जो तुमने जाहिलियत में अपनाई हैं? कहने लगे, नेमत पर शुक्र अदा करना, मुसीबत के वक्त सब्र कर लेना, वाक़या होने वाली तकदीर पर राज़ी रहना, दुश्मनों से जहाद के वक्त सदके दिल से लड़ना और दुश्मन की मुसीबत पर खुशी का इजहार न करना। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग दाना और आलम हैं और अंबिया की सी समझ बूझ रखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 5 चीजें और बताता हूँ, कुल 20 चीजें हो जाएंगी। जो कुछ तुम कहते हो, अगर ये हक है तो वो चीज जमा न करना जो तुम्हारे खाने के काम न आए, वो मकान न बनाना जिसमें रिहाइश न कर सको, उस चीज पर न मर मिटना जो तुमने कल छोड़नी है, अल्लाह ताला से डरते रहना जिसकी तरफ तुमने लौटना है और इसके सामने पेश होना है, और इस घर में रुग़बत करो जिसमें तुमने जाना और हमेशा रहना है। फिर ये लोग आपसे विदा होकर वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु की वसीयत को याद रखा और इसके मुताबिक अमल किया। हज़रत सल्लल्लाहु की खिदमत में बनु मुतफन्नक का वफद हाजिर हुआ। इमाम अहमद के लड़के अब्दुल्ला ने अपने वालिद की मसनद में लिखा है कि इब्राहिम बिन हमजा ज़ुबैरी ने मेरी तरफ लिखा कि मैंने ये हदीस इस तरह सुनी और पढ़ी है जिस तरह तेरी तरफ लिखी है, इसलिए मेरी तरफ से तुझे आगे बयान करने की इजाज़त है। मुझे अब्दुर्रहमान बिन मुगैरा हज़ामी ने बयान किया है, इसे अब्दुर्रहमान बिन अय्याश अंसारी ने बयान किया है। वो लहम बिन असवद बिन अब्दुल्ला अकीली से रिवायत करता है, वो अपने बाप से, वो अपने चचा लकीत बिन आमिर से रिवायत करता है। और उन्होंने कहा है, मुझे मेरे बाप असवद बिन अब्दुल्ला ने आसिम बिन लकीत रज़ी अल्लाह ताला से बयान किया है कि लकीत रज़ी अल्लाह ताला बिन आमिर अपने एक साथी नहीक बिन आसिम बिन मालिक बिन मुंतफक के हमरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। लकीत रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त पहुँचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद लोगों में खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं 4 दिन खामोश रहा ताकि तुम आज मेरी बात सुनो। क्या किसी आदमी को इसकी कौम इसलिए भेजा है कि वो मालूम करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? फिर फरमाया, ये मुमकिन है कि किसी आदमी को इसके दिल की बात या इसके साथी की बात या कोई गुम करदा रहा शख्स गाफिल कर दे, जबकि मुझसे ये सवाल किया जाएगा, क्या मैंने दीन पहुंचा दिया था? लिहाजा सुन लो ताकि तुम मेरी इन बातों को रहनुमा बनाकर खुशगवार जिंदगी बसर कर सको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए, लेकिन मैं और मेरा साथी खड़े रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देख लिया और हमारी तरफ तवज्जो फरमाई। मैंने अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास इल्म गैब में से क्या है? चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिश में ये सवाल करके मैं लफ्ज़िश का मुर्तकिब हुआ था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, गैब में से 5 चीज़ों की चाबियाँ तेरे रब ने अपने पास महफूज रखी हैं, चुनांचे इन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 5 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 मौत का इल्म, वो जानता है कि तुम में से किसी की मौत कब वाक़या होगी लेकिन तुम इसे नहीं जानते। नंबर 2 मनी के बारे में इल्म, जबकि वो रहम के अंदर होती है, इसे भी अल्लाह ताला ही जानता है और तुम इसे नहीं जानते। नंबर 3 इस बात का इल्म कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि कल तू क्या करेगा लेकिन तुम्हें इसका इल्म नहीं। नंबर 4 बारिश के दिन का इल्म, चुनांचे जब तुम मायूसी और खौफ की हालत में होते हो, वो तुम पर झांक रहा होता, हंस रहा होता है कि तुम्हारा ये खौफ एक करीबी मुद्दत तक के लिए है। लकीत रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने कहा तब तो हम अपने हंसने वाले रब के फज़ल व मेहरबानी से महरूम नहीं रहेंगे। जबकि 5वीं चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई, क़यामत का इल्म है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, ये कब आएगी? मैंने अर्ज़ की, हुजूर हमें वो बात बताएं जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है और जो आप लोगों को सिखाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ कि मजद और खसम कबीले के लोग जो हमारे साथ दोस्ती और कराबत रखते हैं, मैं इनमें से कोई भी हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया में कुछ वक्त गुजारोगे, फिर तुम्हारे नबी फौत हो जाएंगे, इसके बाद एक चीख भेजी जाएगी जो रोए ज़मीन पर किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फरिश्ते तुम्हारे रब के जलों में होंगे और तुम्हारा रब ज़मीन पर जलवा अफरोज होगा, जबकि शहर खाली होंगे। फिर तुम्हारा रब अर्श के पास से बारिश नाजिल फरमाएगा जो हर मकतूल के कत्ल गाह और हर मैयत की कब्र तक पहुंचेगी, हत्ता के सर के पास से उसको उठाकर बिठा देगी। फिर तेरा रब हर शख्स से पूछेगा, दुनिया में तेरा क्या मामला था, तूने जिंदगी किस हाल में गुजारी? वो जवाब देगा, मेरे रब
कल और आज यानी ज़मीन पर ठहरने की मुद्दत को कम समझते हुए या तो इसे एक दिन के बराबर समझेगा और इसे कल से ताबीर करेगा, या इसे दिन के बाज़ हिस्से के बराबर समझते हुए आज से ताबीर करेगा। नेज़ वो गुमान करेगा कल ही तो अपने अहल के पास था जिन्हें आज छोड़ कर आया है। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रब हमें क्यों कर जमा करेगा जबकि हवाएं हमारे जिस्मों के एज़ा को मुंतशिर कर चुकी होंगी, या दरिंदे उन्हें खा चुके होंगे, या मरूर अय्याम से वो बोसीदा हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतों में से इसकी मिसाल देता हूँ। क्या तूने ज़मीन को नहीं देखा? वो मिट्टी का एक ढीला होती है जिसे देख कर तू ख्याल करता है कि ये कभी भी सरसब्ज़ व शादाब नहीं होगी, फिर अल्लाह ताला इस पर बारिश बरसाता है तो वो गंदम और सब्ज़ा उगाने वाली बन जाती है, या एक ऐसे होश की शिकल इख्तियार कर लेती है कि जिसमें बकसरत पानी जमा हो और तू जहाँ से चाहे इसमें से पानी पी सकता है। तेरे माबूद की कसम, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी में से तुम्हारे जिस्मों के अज़ा को इकट्ठा करने पर ज़्यादा कादिर है। चुनाचा तुम अपनी कत्ल गाहों और कब्रों से निकल कर इसकी तरफ देखोगे और तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ देखता होगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखना किस तरह होगा? हमसे तो ज़मीन भरी पड़ी होगी जबकि ज़ात बारी ताला यकता और तन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से दूंगा। देखो, सूरज और चांद अगरचे बड़ी मखलूक हैं, ताहम अल्लाह ताला की निशानियों में से एक छोटी सी निशानी है। चुनांचा एक ही वक़्त में ये तुम्हें देखते हैं, यानी तुम इनके सामने होते हो और तुम सब भी उन्हें यूं देखते हो। इसमें कोई मज़ाहमत नहीं होती और ना ही कोई दिक्कत पेश आती है। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अपने रब से मुलाकात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या सलूक फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब के सामने यूं पेश होगे कि तुम्हारे अमाल व अफ़ाल इस पर ज़ाहिर और नुमायां होंगे, हत्ता कि तुम्हारी कोई हरकत भी इस पर मख्फी नहीं होगी। फिर तेरा रब अपने दस्ते मुबारक से एक चुल्लू पानी तुम पर छिड़केगा, तुम्हारे रब की कसम इसमें से एक कतरा भी किसी चेहरा को खता नहीं करेगा। ये मुसलमान के चेहरा को तो सफ़ेद चादर की तरह बेदाग बना देगा, लेकिन काफिर की नाक पर नकेल का निशान बना देगा, यूं जैसे स्याह कोयला होता है। फिर तुम्हारे नबी एक तरफ को रवाना होंगे और तुम इनके पीछे सालिहीन चलेंगे, सभी आग के पुल पर से गुजरेंगे। फिर इनमें से किसी एक का पांव आग के अंगारे पर पड़ेगा तो बेख्तियार इसके मुंह से उफ की आवाज़ निकल जाएगी। फिर तुम सब प्यास की हालत में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज पर वारिद होगे कि ऐसे प्यासे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। तेरे माबूद की कसम, जब तुम में से कोई एक अपना हाथ फैलाएगा तो इसमें एक प्याला आ मौजूद होगा, चुनाचा ये पानी तुम्हें बोल व बराज और नजासत से पाक कर देगा। सूरज और चांद छुप जाएंगे और कोई भी इन्हें ना देख पाएगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस चीज़ के साथ देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह के इस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, और ये देखना इस कदर वाज़ेह होगा जैसे कि तलुए शम्स के वक्त रूए ज़मीर की हर चीज़ चमक उठती है। रावी हज़रत लकीज़ रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी नेकियों और बुराइयों का कैसा बदला पाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का बदला 10 मिसल और बुराई का बदला 1 मिसल, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे माफ़ फरमा दें। फिर मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत और जहन्नम क्या चीज़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे माबूद की कसम, जन्नत के 7 दरवाजे हैं, हर 2 दरवाजों का दरमियानी फासला इस कदर है कि एक सवार इनके दरमियान 70 साल तक चलता रहे, जबकि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और इसके भी हर 2 दरवाजों का फासला इसी कदर है। फिर मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की नेमतों के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें नहरें जारी होंगी, साफ शफाफ शहद की नहरें, ऐसी शराब की नहरें कि जिसके पीने से न सर दर्द की शिकायत हो और न नदामत का सामना करना पड़े, ऐसे दूध की नहरें कि जिसका जायका कभी तब्दील न होगा, पानी ऐसा कि खराब न हो और फल हरदम तरोताज़ा, इलावा आज़ी पाक बीबियाँ। मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए इस जन्नत में बीबियाँ होंगी और क्या इनमें से मुस्लिहात भी होंगी? फरमाया, मुस्लिहात मुस्लिहीन के लिए हैं, या यूँ फरमाया कि सालिहात सालिहीन के लिए हैं। तुम इनसे लज्जत हासिल करोगे और वो तुमसे जैसे कि इस दुनिया में तुम लज्जत हासिल करते हो, ताहम औलाद नहीं होगी। लकीत रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की वो आखिरी और इंतहाई नेमत कौन सी है, कौन सी होगी जिस तक हम पहुँचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें ऐसी बेशुमार नेमतें हैं कि किसी आँख ने कभी देखी न हो, कानों ने कभी सुनी ना हो और कल्ब बशर में कभी जिनका ख्याल तक न गुजरा हो। असल नुस्खे में मुसन्निफ कहते हैं,
میں نے ایک دوسرے نسخے میں یہ الفاظ بھی پائے ہیں کہ فلم یجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ انتہا سے مراد اگر دنیا کی آخری مدت اور انتہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور اگر اس سے مراد جنت یا جہنم میں داخلہ کے بعد وہ انتہا ہے جس تک انسان پہنچنے والے ہیں، تو کسی کو بھی اپنی اس آخری انتہا مقام کا علم نہیں، اگرچہ انتہا جنت اور جہنم تک ہی ہے۔ اس پر میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرمائیے میں کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا اور فرمایا نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور شرک چھوڑنے پر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بیعت کا صلہ ہمیں یہ بھی ملے گا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی چیز حاصل کرنے کی شرط کر رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دے سکتے تھے۔ اس پر میں نے کہا چلیے یہی صحیح کہ زمین پر ہم جہاں بھی چاہیں اتر پڑیں، نیز یہ کہ ہر شخص پر اس کے اپنے ہی نفس کا وبال ہوگا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوبارہ پھیلا دیا اور فرمایا یہ تیرے لیے جائز ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ دونوں دفعہ فرمایا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں۔ اس پر بنو بکر بن کلاب کے ایک شخص کعب بن خداریہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو منتفق اس کے اہل انہی میں سے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دور جاہلیت میں کسی چل بسنے والے کے لیے بھی کوئی بھلائی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے قبل قریش کے ایک صاحب درمیان میں بول پڑے کہ تیرا باپ منتفق آگ میں ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے چہرے کی جلد اور گوشت کے درمیان گرمی محسوس کی، یعنی مجھے شدید غصہ آیا کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے میرے باپ کے بارے میں ایسی بات کہی۔ میں نے ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر میں نے اپنے سوال کو متبادل نرم الفاظ سے بدل دیا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے اہل بھی، تو جہاں کہیں بھی کسی آمری کرشی یا دوسی کی قبر پر جائے تو اسے میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دے، اگرچہ اسے بری لگے تو آگ میں اپنے پیٹ اور منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، کیونکہ ان مشرکین نے دین حنیف کو بدل کر اسے شرک سے آلودہ کیا اور توحید کو چھوڑ کر شرک کے مرتکب ہوئے، جبکہ انبیاء کی دعوت سے جو توحید پر مبنی تھی لوگوں پر حجت قائم ہو چکی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کا کیا قصور؟ وہ تو دنیا میں وہی کرتے تھے جسے وہ پسند کرتے تھے، اور ان کا گمان غالب یہی تھا کہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 7 امتوں کے آخر میں ایک نبی بھیجا ہے، جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہدایت یافتگان میں سے ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ حدیث نبوی بڑی ہی عظیم و جلیل ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت قدر کے علاوہ وہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تاکچے میں سے ہو کر نکلے ہیں۔ یہ حدیث صرف عبد الرحمن مدینی کی طریق سے معروف ہے۔ ان سے اس حدیث کو ابراہیم بن حمزہ زبیری نے بیان کیا ہے، اور یہ دونوں مدینہ کے کبار علماء میں سے ہیں کہ جنہیں صحت و ثقافت کے لحاظ سے قابل حجت سمجھا گیا ہے۔ امام اہل حدیث محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے ان دونوں سے حجت پکڑی ہے، جبکہ دیگر ائمہ سنت نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اسے بالقبول کا درجہ دیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نخا کا وفد حاضر ہوا، یہی آخری وفد ہے جو نصف محرم 11 ہجری میں آیا۔ 200 آدمی تھے جو مہمان خانہ میں اترے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ اس سے پہلے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف بھیجا اور ہر ایک کو علیحدہ علاقہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ یمن کا ملک 2 حصوں میں منقسم تھا اور ہر حصہ کو بخلاف صفا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تاکید فرمائی تھی کہ آسانی سے کام لینا، اپنی رعیت پر تنگی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، ایک دوسرے کی بات ماننا اور باہم اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا تم ایک اہل کتاب قوم کے پاس چلے ہو، سب سے پہلے ان کو یہ دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کے
बेहतरीन माल से बचना और मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि इसके लिए अल्लाह ताला तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है। ये सय्यन में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। रिवायत में आया है मुखलाफ मीम के कसरा और खा की सकून के साथ है और आखिर में फा है। अहले यमन ज़ला या सोबा को मिखलाफ कहते हैं। एक रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ रज़ियल्लाहु ताला तुम एक अहले किताब कौम के पास चले हो, वो तुमसे जन्नत की चाबी के मुताल्लिक सवाल करेंगे। इनको बताना ये चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है, या ये अल्लाह ताला के पास पहुंच जाएगी और रास्ता में इसको कोई चीज नहीं रोकेगी। जो शख्स क़यामत के दिन ये चाबी सदके दिल से लाया, इसके सब गुनाह धुल जाएंगे। माज़ रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाइए, अगर मुझसे वो बात पूछी गई जो अल्लाह ताला की किताब में नहीं और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस बारे में अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं सुना तो मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरोख्त नहीं इख्तियार करना, अल्लाह ताला तुम्हारा सर ऊंचा करेगा। इल्म के बगैर कोई फैसला ना करना, कोई अशकाल पेश आए तो पूछ लेना, शर्म न करना और अहले इल्म से मशवरा लेना, फिर अपनी सवाबीदा से काम लेना। अगर तुम्हारी नेक नियत हुई तो अल्लाह ताला तुम्हें हक के साथ फैसला करने की तौफीक अता फरमाएगा। अगर मामला वाज़े ना बनो तो फैसला करने में जल्दी ना करना, हत्ता कि हक वाज़े हो जाए या मुझसे पूछना। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने से बचना, क्योंकि ये बदबख्त इंसानों को आग में ले जाएगी। और हर हालत में नरमी को अपना शार बनाना। एक रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा तो उनसे पूछा, कोई झगड़ा आए तो किस तरह फैसला करोगे? बोले, मैं अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें अल्लाह ताला की किताब न मिले तो कहने लगे, मैं अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत के मुताबिक फैसला करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुन्नत रसूल में भी न मिले, बोले, फिर अपने इल्म के मुताबिक हक मालूम करने की कोशिश करूंगा, कमी और इसमें किसी तरह की कमी नहीं करूंगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीना पर हाथ मारा और फरमाया, खुदा का शुक्र है कि इसने अल्लाह ताला के रसूल के एलची को सही फैसला करने का तरीका बताया। रवाह तिरमिज़ी व अबी दाऊद व दुर्रामी। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हमारे इलाका में जौ से शराब बनती है जिसको मज़र कहते हैं और शहद की शराब को बता कहते हैं, इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब नशा पैदा करती है वो हराम है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर रवाना हो गए। एक दफ़ा मुलाकात हुई तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, आप कुरान हकीम की तिलावत किस तरह करते हैं? बोले, खड़े बैठे सवारी पर वक्फे वक्फे से तिलावत करता रहता हूँ। मुआज़ कहने लगे, मैं तो सो रहता हूँ, फिर क़याम करता हूँ और अपने सोते में भी अपने क़याम की तरह सवाब की नियत करता हूँ। फिर वो वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दफ़ा मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात के लिए आए तो एक आदमी को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा। पूछा, क्या मामला है? अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये शख्स यहूदी था, इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया। मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, तब तो मैं इसकी गर्दन उड़ाकर ही दम लूंगा। अब हम वफ़द का वाक़या बयान करते हैं। वफ़द के एक आदमी ने, जिसका नाम ज़रारा बिन उमरू था, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सफ़र में एक अजीब ख्वाब नजर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? वो कहने लगा, मैं अपने घर एक गधी छोड़ आया था। मैंने ख्वाब में देखा है कि इसने एक स्याह सुर्खी माइल बकरी का बच्चा जना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपने घर कोई हामिला लोंडी छोड़ी है? बोला, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसी ने बच्चा जना है और वो तुम्हारा बेटा है। कहने लगा, फिर वो स्याह सुर्खी माइल क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने नज़दीक बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे जिस्म पर बर्फ के दाग हैं जिन्हें तुम छुपाते हो? बोला, हाँ, खुदा की कसम, इनको किसी ने नहीं देखा और न आपके सिवा किसी ने इन पर इत्तला पाई है। फिर इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नोमान बिन मंजर को ख्वाब में देखा है कि इसने कानों में डंडियां, हाथों में कंगन और पैरों में पाजेबें पहन रखी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अरब का बादशाह है, तूने उसको अच्छी हालत और खूबसूरत लिबास में देखा है। इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में एक सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया को ज़मीन से निकलते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाकी मांदा दुनिया है। फिर इसने कहा, मैंने ज़मीर से निकलने वाली एक आग देखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक फितना है जो बाद में जाहिर होगा। तो बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फितना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने बादशाह को कत्ल कर देंगे, फिर इनमें बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और आपस में कट मरेंगे। इसमें बदकार अपने आप को नेकोकार समझेगा और मोमिन के नज़दीक दूसरे मोमिन का खून पानी से भी ज़्यादा शीरीन होगा। अगर तेरा लड़का फोत हो गया तो तुम इस फितना में मुब्तला होगे और अगर तुम फोत हो गए तो तुम्हारा लड़का इसमें मुब्तला होगा।
کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا کریں کہ میں اس فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا یا اللہ یہ اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ یہ مر گیا، اس کا لڑکا زندہ رہا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت چھیننے والے باغیوں میں شامل تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔